جشن شادی خانہ آبادی، فیضان حضور بدر ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان اولیاء الا المتقون، آئیے بکھر جمالوں سے پیش کر آقائے کائنات محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیے درود پیش کیجیے۔ پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم خیر و برکت کے لیے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور سنائیے درود جی لگا صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ۔ مختصر سی مجلس ہے، مختصر بیان ہے اور رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ حصول برکت کے لیے چند کلمات عرض کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ ان اولیاء الا المتقون، اس کے دوست تو صرف متقی ہیں۔ تو کچھ تشریح و توضیح کے پہلے کلام الامام امام الکلام برکتاً پیش خدمت سے سماعت فرمائیے۔ تیری ذو مشعل ہر انجمن ہے، تیری ذو مشعل ہر انجمن ہے، تیری ذو شمع ہر محفل ہے یا غوث۔ یہ چشتی نقش بندی، یہ چشتی نقش بندی سہر وردی، ہر ایک تیرے طرف آئل ہے یا غوث۔ اب تو ہے نوشا، تو ہے نوشا براتی ہے یہ سارا گلزار، لائی ہے فصل سمن بوند کے صحرا تیرا، نہیں کس چاند کے منزل میں تیرا جلوے نور، نہیں کس چاند کے منزل میں تیرا جلوے نور، نہیں کس آئینے کے گھر میں اجالا تیرا۔ مزرعے چشت و بخارو عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارو عراق و اجمیر، کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ کون سے کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، بات کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ سبحان اللہ۔ بات کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ ان اولیاء الا المتقون، اس کے دوست تو صرف متقی ہیں۔ بے شک۔ تو اس کے دوست ہیں تو متقی ضرور ہوں گے، لیکن اہل سنت کا معیار ہی عجب ہے۔ ایک للہ آیا تھا، اس وقت شاید کہ مولانا غلام معین الدین صاحب جو موجودہ صدر ہیں مدرسے کے، وہ بھی پڑھ رہے، اس کو بزرگ بنا دیا لوگوں نے، اور قرآن پاک میں کہا ان اولیاء الا المتقون، اس کے دوست تو صرف متقی ہیں۔ تو جو دوست ہوں گے وہ متقی ضرور ہوں گے، اور متقی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ولی ہے۔ مفتی صاحب کو بھاگ رہے ہیں، کباب میں ہڈی پیدا کر دیا، آپ نے درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ۔ تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، سمجھ میں آئے تب بھی ثواب ملے گا، اور نہیں سمجھ رہے ہیں تب سب سے عظیم منصب پر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فائز ہیں۔ بریلی کے سرکار بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ فرش والے تیرے شوکت کا غلو کیا جانے، فرش والے تیرے شوکت کا غلو کیا جانے،
खुसरवा अर्श पे उड़ता है बुरेरा तेरा। और नबी के सदक़े में, नबी के नियाबत के सदक़े में गौसे पाक को भी अपने माबूद से कुर्ब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह शहे रग से भी ज़्यादा करीब है, अल्लाह करीब है। अगर ये कुर्ब हट जाए तो इंसान मिट्टी का ढेर हो जाए। और नबी के सदक़े में गौसे पाक भी कुर्ब मोहब्बत में सैर कर रहे हैं। वहाँ भी किसी का ख्याल, गुमान, वहम नहीं पहुँच सकता है। अब फिर हम बरेली चलते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, से आप कुर्बे मोहब्बत के अजीम मनसब पर फाइज हैं। और एक हदीस कुर्बे मोहब्बत के अजीम मनसब पर फाइज हैं। अब एक हदीस सुन लीजिए बुखारी की। हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू हुरैरा से तखरीज की है, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। तो जो वली होता है वो खिलाफे औला का भी पाबंद होता है। फराइज़ व वाजिबात को तो जाने दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हदीस शरीफ ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया, ये हदीस कुदसी से कहा जाता है। ये फरमाने रब है, ज़ुबाने मुस्तफ़ा से इसकी तर्जमानी हो रही है। और कहने अक़दस से जो भी बात निकलती है वो तीन तरह की होती है। हज़रत शेख अब्दुल अजीज जब्बार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक बात सुन लीजिए, इल्म तो बुजुर्गों की नज़र से पैदा होता है। वो बुजुर्ग हैं, उम्मी बुजुर्ग हैं, किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गए। वो फरमाते हैं कि कहने अक़दस से जो बात निकलती है वो तीन तरह की होती है। नबी अगर अपने हाल में गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसे हदीस कहा जाता है। और नबी अगर थोड़ा मुस्तइल हो गए तो उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। और नबी मुस्तइल होने के बाद बेइख्तियार हो गए तो उसे कुरान कहा जाता है। तो चाहे हदीस कुदसी होवे, चाहे हदीस होवे, चाहे कुरान होवे, सब वही इलाही है। कहने अक़दस से जो भी बात निकली वो सब के सब वही है। वो जहन जिसकी हर बात वही है खुदा। और यही आला हज़रत का भी नजरिया है। वो जहन जिसकी हर बात वही है खुदा। चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। तो कबले वही या बादे वही नबी के ज़ुबाने अक़दस से जो निकला वो सब के सब वही है। तो ये वही है, हदीस कुदसी है। ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया का यही हाल है। हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और उसके बाद कुन्तु समाहुल लज़ी यस्मउ बिही, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। यदहुल्लती यबतशु बिहा, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। रिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसका कदम हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। और आयशा के रिवायत में ये भी फवादहुल्लती याक़िलु बिहा, मैं उसका दिल हो जाता हूँ जिससे वो सोचता है। तो एक अल्लाह का जो वली होता है वो ज़रिए इलाही से देखता है। एक वली कुदरत इलाही से पकड़ता है। एक वली जलाले इलाही से देखता है। एक वली कुदरत इलाही से चलता है। एक वली कुदरत इलाही से देखता है।
जब वली का हाथ कुदरत इलाहिया का नूर हो जाए, उसकी आंख कुदरत इलाहिया से देखे, उसका कदम कुदरत इलाहिया से उठे। हदीस पाक में है इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल मोमिनु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन नूर इलाही से देखता है। इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन, मोमिन के फरासत से डरो, वो नूर इलाही से देखता है। तो उसके देखने की हदबंदी नहीं की जा सकती है, न उसके पकड़ने की हदबंदी की जा सकती है। ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में एक गरीब ने शिकायत किया कि हुजूर राजा पिथौरा मुझे बुरा भला कहता है, नाजायज तौर पर सताना शुरू किया। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने एक कासिद भेजा और इरशाद फरमाया कि इस गरीब को मत सताओ। तो आपकी सिफारिश को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा उसने ये कहा कि दूर दराज से एक शख्स आया है जो गैब की बात बताता है। तो आपकी सिफारिश ना कबूल करने की वजह से क्या हुआ जानते हैं? कासिद ने मीनवान बयान कर दिया कि हुजूर आपके इस्तिगासा को आपने, आपके सिफारिश को आपने राजा पिथौरा ने कबूल नहीं किया। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उसी नशिस्त में फरमाया राजा पिथौरा जिंदा गिरफ्तार कर दे, लश्कर इस्लाम सिपुर्दैन। राजा पिथौरा को मैंने जिंदा गिरफ्तार किया और लश्कर इस्लाम के मैंने सिपुर्द कर दिया। एक हफ्ता भी नहीं बीता, शहाबुद्दीन गौरव आया और जिंदा गिरफ्तार करके लेकर के आया। तो एक वली का ख्वाजा गरीब नवाज का पकड़ना कुदरत इलाही से है, उनका देखना कुदरत इलाही से है। मौलाए कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैबर का किला उखाड़ करके फेंक दिया। जंग के बाद 70 सहाबा हिलाते थे वो किला, वो दरवाजा हिलता ही नहीं था किले का। तो आप मुस्कुराए, क्या आपने जाना कि मैंने ताकत इंसानी से उसको नहीं उठाया है, बल्कि कुव्वते रहमानी से मैंने उसको उठाया है, कुव्वते रहमानी से उठाया है और कुदरत इलाही से उसको मैंने उठाया है। तो एक वली का देखना कुदरत इलाही से है, एक वली का चलना कुदरत इलाही से है, एक वली का देखना कुदरत इलाही से है। तो अगर इस शादी के महफिल से हम गौसे आजम को पुकारेंगे तो मुझे यकीन है कि गौसे पाक हमारी फरियाद को सुन लेंगे। गौसे आजम बमने बेसरो शामा मद दे। हुजरे उर्सी में रहने वाले को, खास नहा खाने में रहने वाले को वो नहीं देख सकता है। तो उनसे कह देना मेरा मकाम मकाम निफ्ता है, खास हुजरे उर्सी में मैं रहता हूँ। नहा खाने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहता है, उनके सर के ऊपर से आता है और जाता है, उनको खबर नहीं। लेकिन अगर तहकीक चाहिए, फला तारीख को 12,000 औलियाए कराम को जोड़ा अता हुआ था वलायत का। कासिम अल्लाह था, देने वाला रब था, अता करने वाला रब था और बांटने वाला मैं था। मेरे हाथ से उनको भी वलायत का जोड़ा अता हुआ। मजीद तहकीक चाहिए तो सोने के वर्क से कुल हु अल्लाह शरीफ मनकूश था। जब ये सुना शेख अब्दुल रहमान तफसून जी ने तो कहा कि कद सदका शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सच कहा है। वो मुर्दे को जिंदा कर देते हैं और जिंदे को मार देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी माहियत को बदल देते हैं, हकीकत को तब्दील कर देते हैं, तखय्युल को खत्म कर देते हैं, बीमारी को दूर कर देते
کرتے ہیں وہ مرد جو دور ہونے والی نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی سب کچھ دور کر سکتے ہیں. تو شادی بیاہ کا انتظام اگر شیخ عبد القادر جیلانی کا چرچا جس دروازے پر ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ ان کی برکتوں سے شادی ایسی ہوگی کہ آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے. سبحان اللہ. اور عقیل خاں کی روح بھی خوش ہو جائے گی, آپ کے آبا و اجداد کی روح خوش ہو جائے گی. اخیر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں غوثیت مآب کی محبت ڈال دے اور صاحب خانہ کو اس فیضان سے مالا مال کر دے. پروردگار جو دقتیں ہو بڑے پیر دستگیر کے صدقے میں وہ دقت بھی ختم ہو جائے اور شریعت کے روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. وما علینا الا البلاغ. یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سبحانا, جگمگا اٹھا زمانہ, پورے گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکا, سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا. ہو جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو, دوپہر سے دن ڈھلا ہو, لب پہ جاری ہے صدا ہو. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا. صلوات اللہ علیکا. کعبے کے بدرود جاؤ, طیبہ کے شمس الضحیٰ ہو, شافع روز جزا ہو, دافع جملہ بلا ہو. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا. صلوات اللہ علیکا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء, صلى الله تعالى عليه وسلم.